یہاں پہ ہماری غربت اتنی ہے کہ ہمیں مطلب سبزی تک بازار سے خریدنی پڑتی ہے. گورنمنٹ کو ٹوریزم کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ ہے کیونکہ یہ بارڈر علاقہ ہے، یہاں پہ امن ہمیشہ رہنا چاہیے. بات ایسی ہے کہ کوئی والدین یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ خراب ہو. اس چیز کے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. وہ ایکسیسیبلٹی اگر پرووائڈ کرا دی جائے تو میرے حساب سے ٹوریزم کافی زیادہ پروموٹ اس علاقے میں ہو سکتا ہے. ایجوکیشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک ڈرگس بیچنے والوں کی پراپرٹی سیز نہیں جائے گی تب تک ڈرگس کے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے پروگرام روبرو میں. میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ فضا نذیر اور ناظرین میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدثر. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری ٹیم کا یہی مدعا ہوتا ہے کہ ہر ایک جگہ پہ جانا اور وہاں پہ لوگوں کے تاثر سننا. اسی وجہ سے ہم آئے ہیں آج ضلع بانڈی پورہ کی ولور ونٹیج پارک میں. یہاں پہ ہم بات کریں گے ولور والوں سے اور جانیں گے ان کے حالات کیسے ہیں. ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ابھی وولر ونٹیج پارک میں موجود ہیں اور وولر ایشیا کا سیکنڈ لارجسٹ فریش واٹر لیک مانا جاتا ہے. تو آئیے یہاں کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لیک کو کیسے پریزرو اور کنزرو کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ اقدام اٹھائے ہیں آج تک یہاں کے لوگوں نے اور کیا کچھ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے سرکار کو. میرا نام شکیل ہے، میں یہیں ولور لیک کے ایک گاؤں صدرکوٹ بالا میں رہتا ہوں. تو ہم ایک فورم چلاتے ہیں ولور بچہ فرنٹ، جس کا مین ایشو ہے کہ ولور کی کنزرویشن کی بات ہو. جو ولور کو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ اس کا پلیوشن ہے. سارا پلیوشن جو آتا ہے وہ جہلم ریور سے آتا ہے. قریباً 88% جو واٹر سپلائی ہے جو ولور لیک میں آتی ہے وہ صرف جہلم سے آتی ہے. اور سری نگر سے لے کر پورے جو بانڈی پورہ تک جتنے بھی ایریا کنیکٹڈ ہے ولور لیک سے، خاص کر جو میونسپل ایریا ہے سری نگر میونسپلٹی ہے بانڈی پورہ میں ڈفرنٹ ہے، وہ اپنا سارا ویسٹ اسی میں تھرو کرتے ہیں جہلم ریور میں. اور جو ولور کی ایکویٹک لائف کے لیے بہت ڈینجر ہے فیوچر میں، اور گورنمنٹ اس کے لیے کوئی پراپر سٹیپ نہیں اٹھا رہی ہے. تو آنے والی ایک وقت ہے کہ ولور ایک ڈسٹ بین بن کے رہ جائے گا. ہماری ایڈمنسٹریشن سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس کی پریزرویشن کی بات کی جائے. جو اس کے کناروں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لائیولیہڈ کو بچایا جا سکے، کیونکہ فشنگ جو ون آف دا مین سورس آف انکم ہے ولور لیک کا، وہ ڈے بائی ڈے ختم ہو رہی ہے اس پولوشن کے کارن. سنگاڑا بھی ولور لیک سے ہی نکلتا ہے اور اس کی بھی ڈے بائی ڈے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. 2014 کے فلڈ کے بعد سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ولور کے کنارے پہ رہنے والے لوگ ہی ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی ولور لیک کی اور بانڈی پورہ کی بات کریں گے. بانڈی پورہ کو بنڈ آف ولور کہتے ہیں. تو یہاں کے جو مکین ہیں ان کی کیا کوشش رہتی ہے کہ ولور لیک کو بچانے کی؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے، تو تب جب ولور کو افیکٹ نہیں ہوا تو اب کیسے افیکٹ ہوا ہے. لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں جسے میں اس کو ماڈرن، جسے ہم سو کالڈ ماڈرن دور کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے پولوشن. آج آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی پراپر پلاننگ نہیں بھی کی ہے. خاص کر جو کمیونٹی ہے وہ تو اتنا ویسٹ جنریٹ نہیں کرتے. جو سب سے زیادہ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ ان ریور جہلم سے ہی آتا ہے. اور جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اس کی پریزرویشن کی بات ان کو پہلے اویئرنیس دینا پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں جو بھی نکلتا ہے گائے بیڑ بوڑ کا فضلہ وہ تو ہم کھیت بیت میں یوز کرتے ہیں، لیکن جو باقی ویسٹ ہے اس کے لیے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ایک پراپر ڈیکمپوزیشن بنانا چاہیے. اس کو جو ویسٹ نکلتا ہے اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی آج تک کوئی پراپر پروگرامنگ نہیں کی ہے. جب تک ہم اس ویسٹ کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے یہاں کی ایڈمنسٹریشن اس کو کوئی پراپر اسٹیپ نہیں اٹھائے گی تب تک یہ سکسیسفل نہیں ہے. اور باقی رہی لوکل لوگوں کی بات، آپ بولتے لوکل لوگوں کا تو اس میں ہزاروں سالوں سے رہ رہے، جب تب خطرہ نہیں تھا تو اب ہم سے کیا خطرہ اس لیک کا. سر جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کر رہی ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے کام کر رہی ہے مگر جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پا رہا ہے. اگرچہ گورنمنٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کیا، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے ولور کو صاف کرنے کا جس سے ڈریجنگ ہو رہی ہے. مگر جو بیدے کے درخت کاٹے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کاٹیں گے یا نہیں. بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پیڑ کاٹے گئے ہیں، اس سے بھی
माहौल को नुकसान पहुंचता है, वो पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। और जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाना है या उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाना है, ताकि वो सीख जाए कि किस तरह से हम इसको महफूज रख सके। अगर कोई वो गंदगी इसमें डालते हैं, बहुत ही कम डालते हैं, जैसा कि मेरे भाई ने भी बताया, ज्यादातर गंदगी जहलम से आती है। जो इसके आसपास के रहने वाले वो बहुत कम गंदगी डालते हैं, मगर वो भी नहीं जानी चाहिए इसमें। उसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, ये मेरे भाई ने सही बताया है। गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं, या जैसे कि वलूर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसी को कुछ करना होगा, ताकि इन्हें रिहेबिलिटेट करे या इन्हें डिकम्पोज करने के लिए, या इन्हें जो फजला निकलता है वहां से उसको डिकम्पोज करने के लिए, या उसके लिए कोई साइट होनी चाहिए जहां पे वो फेंक सकते हैं। मैं भी यहाँ वलोर के गांव में रहता हूँ। जो सबसे पहले जो पोल्यूशन, ये तो मेडिकल वेस्ट जो यहाँ से आता है, श्रीनगर से आता है, जहलम के थ्रू आता है, तो ये मेडिकल वेस्ट या फर्टिलाइजर वेस्ट, ये पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल करते हैं बागों में, इसके बाद ये सब ही इसी में फेंकते हैं। इसके लिए प्रॉपर कोई इकदाम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को इसको डिकम्पोज करने के लिए। जैसा कि वो 3 म्यूनिसिपलिटी हैं इसके इर्द गिर्द में, एक सुंबल है, बांडीपुरा है, सोपोर है, इसके इर्द गिर्द में 3 म्यूनिसिपलिटी हैं। ये जो कोड़ा किरकट है, इससे पहले भी एक एनजीटी ने इसके एक एडवोकेट ने एक केस फाइल किया था इसमें, जो उसने एक डस्टबिन बनाया था उन लोगों ने, म्यूनसिपल वालों ने। तो इसके लिए गवर्नमेंट को उठाना, कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे ये प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे भाई ने अभी कहा कि आम लोगों का क्या रोल है कि ये जो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है वलोर लेक में, तो आम लोगों का इसमें क्या किरदार है। जैसे कि अगर आप अपना कैमरा जूम आउट करोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे जो किश्तियाँ हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी, हज़ारों में, लाखों में मुझे लगता है। वो तो जो है इनका जो यहाँ पे निकलता है वो तो ऑलरेडी सुबह सवेरे निकलते तो वो तो शाम तक वो जमा करते हैं, या उसमें चाहे घास है या कुछ और कीचड़ भी वो तो वो निकालते हैं। आप अगर देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो, वो तो निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पोल्यूशन का जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको वो क्या करें। वो तो म्यूनिसिपलिटीज एरिया जो है बांडीपुरा में, हाजिन में है, या श्रीनगर में जो भी जो मेडिकल वेस्टेज है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है ये आते हैं, उसको वो क्या करें, उसको कहाँ वो डिकम्पोज करें। उनके लिए, बेचारों के लिए वो ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो वो डिकम्पोज करे। बाकी जो वहाँ पे वेस्ट है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, वो तो घास वास जो है बाकी कुछ है तो वो तो निकालते हैं। लेकिन जो ये वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज या कमर्शियल वेस्टेज जो है उसको क्या करें। उसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग देखनी है, उसके लिए एक प्रॉपर जगह देखनी है जहाँ पे वो डिकम्पोज करें। तो मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे, इन्होंने बात की वलोर के बारे में, मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि वलोर का जो पहला एरिया था, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड नाउ टू 45%। जो इसमें एनक्रोचमेंट हुई है, इसका जो टोटल एरिया था अब उसका टोटल बचा है 45%। तो सबसे पहली बात है कि इसका कोई गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं आया इसने एनक्रोचमेंट की। सबसे पहली चीज़ है उसको चेक करना है कि अदर लोकल्स, उनका ज़्यादा रोल रहता है, हर किसी चीज़ को लोकल्स का रोल रहता है। तो मैं सबसे पहली चीज़ में यहाँ पे चेक करना, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि पोल्यूशन जो है वो सबसे बड़ी है, ये इंटरनेशनल थ्रेट है, नॉट ओनली द लोकल थ्रेट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ही हम एंटर हुए ये खूबसूरत एक पार्क है वलोर के बीच में बनी हुई है, जो ही हम एंटर हुए तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी, द फुल जो पार्क, इट वॉज कवर्ड लाइक अ डस्टबिन। तो पूरे जो पार्क में सब जगह हम देखते हैं पॉलीथीन की बोतलें हैं, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, पॉलीथीन पड़ा है, कुरकुरे है, लेज है, जो एक सीरियस थ्रेट है पूरी इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, नॉट फॉर आवर सेल्व्स। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि वी शुड काउंसिल आवर सेल्व्स, क्योंकि हम ही लोग यहाँ पे आते हैं ना, हम ही करते हैं, कोई दूसरे प्लेनेट से कोई नहीं आ सकता है ना जो इसकी एनक्रोचमेंट कर सकता है। हमने कन्वर्ट किया है इसको पहले एग्रीकल्चरल लैंड में। जैसा कि अंकल ने कहा, यहाँ पे एक पार्क बनाई जा रही है जिसका नाम दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। वैसे ही जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, जब वो देखेंगे वलोर में जो वेस्टेज होगा वो क्या सोचेंगे। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना होगा कि वलोर को हम कैसे बचाए, कैसे हम वेस्ट से इसको बचाए। जैसा कि हाजुन में म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जब कि आप हकाबारा में देखेंगे वहाँ पर उन्होंने बनाई है वेस्टेज के लिए, मतलब कोई ऐसे मकान जैसे वो हैं वेस्टेज के लिए, लेकिन वो
अब इसमें से वेस्ट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें वेस्ट, लेकिन सब दुकानदार जो हैं उसी में वेस्ट डालते हैं, लेकिन वो अब भर चुके हैं, वो अब फुल हो चुके हैं। और गवर्नमेंट कभी भी गाड़ी नहीं आती है, कोई गवर्नमेंट गाड़ी, म्यूनसिपल गाड़ी नहीं आती है उसको कलेक्ट करने के लिए, और फिर वही वेस्टेज हम मजबूर हो जाते हैं जहलम में डालने के लिए, इसलिए वो फिर आती है और फिर इस वालर में चली जाती है। मैं आपसे ही मुखातिब होके या यहाँ के जो लोग हैं, जीशूर लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो घरों से फुजला निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है, वो कहाँ पे समाया जाता है, वो कहाँ पे रखा जाता है यहाँ वलूर में? सर जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वहाँ पर बनाए हुए हैं म्यूनसिपलिटी ने ये कुछ बिल्डिंग्स इसी वेस्टेज के लिए, लेकिन वो फिर कलेक्ट नहीं होता है कभी भी, उसमें से मतलब कोई गवर्नमेंट गाड़ी नहीं आती है उसके कलेक्ट करने के लिए, वो वही अब सारा कलेक्ट वही हो चुका है, और अब वो धीरे धीरे उसमें से स्मेल आने लगती है, वही फिर उससे हमारा गाँव भी बर्बाद हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाती है, मजबूर हो जाते हैं हम इसको जलाने के लिए, उससे सर एयर पोल्यूशन भी होती है। सर मैं एक छोटे से एक गांव में रहता हूं। जब हमारे घर से कोई कूड़ादान निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, वो हमारा एक वहाँ पे एक बंड है, उसके सामने एक मस्जिद है, वो उसी के सामने डालते हैं, फिर वो जहलम में चला जाता है, फिर जहलम से जाके वो यहाँ पे वलूर में पहुँचता है। बिकॉज जो वलूर है इट इज, मतलब ये हम इतना नहीं कह सकते इट इज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्चुअली ये एक लाइवलीहुड भी है, इसमें बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड भी चल रहा है, लेकिन फ्रॉम लास्ट 30 years द वलूर हैज श्रिंक्ड ड्यू टू सम, मतलब आवर ओन एक्टिविटीज। हमने इसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया है, कहीं पे प्लांटेशन लगा दी, कहीं पे इसकी बराई कर दी। तो फॉर्चुनेटली अब एक चीज है गवर्नमेंट ने किया है, वलूर वो हुक्मा एक अथॉरिटी है, वलूर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने लिए कुछ स्टेप्स, इसको कन्वर्ट करा। अब ये टूरिस्ट एरिया भी बनने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। मैंने जनवरी में भी देखा था एक आर्टिकल, अब यहाँ पे एक 200 कनाल पे एक बनने वाले हैं, एक ट्यूलिप गार्डन भी बनने जा रहा है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है। लेकिन जब तक न, क्योंकि बीइंग ए लोकल आई एम फ्रॉम बांडीपोरा, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे दोस्त है, इससे भी ज्यादा लोकल है, जब तक ना हमें एक अवेयरनेस आ जाएगी कि ये हमारी अपनी खूबसूरती है, तब तक किसी दूसरे प्लेनेट से इसको कोई बचाने नहीं आएगा। पहले हमें खुद बचाना है, इसके बाद दूसरों को हम समझाएंगे कि ये हमारी एक वाटर बॉडी ही नहीं है, बल्कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारे जो पिछले तबके के लोग हैं उनके लिए। जैसे मेरे दोस्त ने भी बताया कि हम देख सकते हो पीछे कितने बोट है यहाँ पे, या इतनी जो यहाँ पे निकालते हैं, सिंगाड़े निकालते हैं, कोई और चीज निकालते हैं, उनका एक रोजगार है। पहले हमें खुद इस पे सोचना है कि किस चीज से हम इसको बचा सकते हैं, पोल्यूशन से भी, क्योंकि सबसे एक छोटा पीस ऑफ लैंड हमने इसी में कन्वर्ट किया है पार्क में। हम इस छोटे से पीस को नहीं कंजर्व कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में हम कैसे सोच सकते हैं आने वाली नस्लों को, मैं एक टीचर हूँ, आने वाले नस्लों को, बच्चों को हम कैसे बताएंगे कि हमारा एक वलूर था जो अब एक एंडेंजर्ड भी नहीं, अब एक्सटिंक्ट बन गया है। तो बस ये मेरा कहना है। पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब 90 से पहले तो तब पॉलिथीन वालथीन नहीं था। अब ये सारा पॉलिथीन जो आता है, जो भी वो वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है, वो सारा वेस्ट हम अपने घर से निकाल के बाहर रोडों पे डालते हैं या ऐसे नदी नालों में डालते हैं जहाँ से पानी बहता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम इस जगह पे बहते हैं, यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जिसे हम हिमालयन रेंज भी कहते हैं, और लोकली हम इसको हरमुख रेंज भी कहते हैं। इन पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इन ग्लेशियर से बड़ा अच्छा पानी आता है जो बस्ती के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती के सब जब वो पानी बस्ती के करीब आता है तो इसमें जो सारा जो पॉलीथीन, मेडिकल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो सारा इन्हीं नालों में जाता है, और हम उस पर पॉलीथीन और बाकी वेस्ट डाल देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्ट्रैक्ट होती है और वो नाले भी खराब होते हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किए हैं, सिर्फ उसको कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने बात की है, लेकिन इसको डिकम्पोज कैसे करे, सेग्रीगेट कैसे करे, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए आज भी हमारे एरियाज में एक गाड़ी आती है जो इसको कलेक्ट करती है, और वो मोस्टली ज्यादातर वलूर लेक के किनारों पे ही डंप करती है। आप देखिए, आप जब श्रीनगर से बांडीपुरा आते हैं, आप वलूर के किनारों पे देखिए बहुत सारा मेडिकल वेस्ट लोकल जो विलेजों में जो गाड़ियां आती है वो कलेक्ट करती है और वो वलूर लेक के किनारों पे फेंक देते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बस्ती से उठाकर लेक को डिस्ट्रैक्ट किया है, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और एक रामसर साइट भी है, और हजारों लोगों का लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, जिसमें फिशिंग है, वाटर चेस्टनट है और पेस्टोरल एक्टिविटीज है उसके किनारों पे। लेकिन सिर्फ ये डिबेट करने से या गवर्नमेंट के कहने से ऐसा नहीं होता है। पहले लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, और खासकर जो बाकी आउटसाइड का पोल्यूशन है उसको भी पहले रोकना होगा, और जितनी भी पीआरए इंस्टीट्यूट से, पंचायत राज इंस्टीट्यूट से, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ जब हम यहाँ पे होते हैं नरेगा का काम होता है तो छोटे छोटे काम होते हैं। हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके लिए
फंड्स अवेलेबल रखें ताकि कम्युनिटी में अवेयरनेस रिलेटेड कम्युनिटी में इस रिलेटेड अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारा जो सारा इस वक्त डिपेंडेंट है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स पे ही है। तो पंचायत को इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल है, तो पंचायत का रोल इसमें सबसे ज्यादा अहम बनेगा गांव में, तो तभी हम इस लैक को बचा सकते हैं अगर हमें इसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। नाज़रीन, जहां बात बांडीपोरा की करते हैं, बांडीपोरा का एक अलमी सफर है जहां जिसको हम कहते हैं कि आब, अदब और इल्म। तो हम यहाँ के इल्म के बारे में बताएंगे। यहाँ पे यूथ बैठा हुआ है, तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का जो सेक्टर है वो कैसा बूस्ट है और उसको बूस्ट करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। और जहाँ तक बात है एजुकेशन की, हमारे यहाँ एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और रही बात हमारे जो मेरा इलाका है फ्रंग, वहाँ भी एजुकेशन बहुत ही कम है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की तरह मुतवज्जा हो और अच्छी तरह से पढ़ सकें। और रही बात स्कूल्स की, आप कह रहे हो वहाँ पे एजुकेशन कम है, इसकी क्या वजूहत रही है? वहाँ पे तालीम कम है। जी सर, बेसिक रीज़न जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। पहले जो लोग थे आज से 10 साल पहले, वो बहुत एजुकेशन उन्होंने हासिल की है। आधे लोगों ने एमए, एमएससी और नेट भी किया है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। इसलिए जो आज नए जनरेशन जो है वहाँ, वो एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं करती। तालीम का रुझान का सबसे मेन वजह यह है पॉवर्टी। लोगों के पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि अपनी बच्चों को हायर एजुकेशन दे सकते। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं। आई विल गो टू फॉर द पीएचडी, आई हैव जस्ट कंप्लीट माई मास्टर्स डिग्री और छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इश्यूज पे काम स्टार्ट किया एज ए वॉलंटियर। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पॉवर्टी। गवर्नमेंट को अगर हम आपने कहा बांडीपोरा इज इल्म, अदब एंड आब, लेकिन अगर आज की बात करें, बांडीपोरा इज द वन ऑफ द बैकवर्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। आप देखिए हाल ही में केएएस का रिजल्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हमें प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पे ही ध्यान देना चाहिए। पहले हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर जो है पुअर्टी है। पुअर्टी यहाँ पे रिच उतने नहीं रहते हैं कि पुअर्टी है। ताकि हम बात करें बांडीपोरा की, तो बांडीपोरा में हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है ना, 2 क्लास में डिवाइड हुआ है। एक है प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हम अगर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे को ये करते हैं एंड होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। अब जो रही बात हमारे जो गरीब बच्चे हैं, तो वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए या किसी और इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन को ये करे, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। ताकि यही एक वजह है कि जो हमारे बांडीपोरा के लोग हैं अनएजुकेट है, वो काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि कश्मीर में काफी ज्यादा पॉवर्टी है, तो इस पॉवर्टी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? हम कैसे एम्प्लॉयमेंट के जो जराए हैं अपने लिए उनको अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड रहे तो उससे पॉवर्टी दूर नहीं होगी। तो इंसान हम खुद से कैसे इस पॉवर्टी से बाहर इंसान इस पॉवर्टी से ऐसे बाहर आ सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया होगा कि कोई इंडस्ट्री हो, कोई ऐसा लाइवलीहुड हो जहाँ पे लोग जा सके, वहाँ पे अपना ये अपनी जो इकोनॉमिकल बैलेंस है वो उसको ये कंट्रोल करे और अपनी इकोनॉमिक जो घर में उनकी ज़रूरत है उसको कंट्रोल करें। तो जैसे भाई ने यहाँ पे कहा है कि जो बांडीपोरा की एजुकेशन है, देखिए आजकल हम देखेंगे ना तो बहुत सारे लड़के जो हमारे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, एमएससी किया है, एकेडमी उनकी बहुत ज़्यादा है, बट अभी क्या हो रहा है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे लग रहा है कि सबसे कम पैरामेडिकल कॉलेज से, सबसे कम आईटी कॉलेज से, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे होनी चाहिए कि यहाँ पे टेक्निकल पे और प्रोफेशनल पे बहुत सारा काम होना चाहिए, क्योंकि आजकल जॉब्स कम मिल रहे हैं। तो अगर जॉब्स भी नहीं मिलेंगे बट टेक्निकल और प्रोफेशनल पे काम होना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर मैं बात करूंगा, जहाँ पे हमारे भाई ने बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे। देखिए मुझे बोले एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजता है? सो इट्स क्वेश्चन कि क्यों भेजता है वो प्राइवेट स्कूल में। देखिए रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ पे अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट टीचर्स है, तो वो हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स वहाँ पे हैं वो पढ़ाते क्या है वहाँ पे,
क्या उनको पूछने वाला है कोई कि आप पढ़ाते कैसे हो? जैसे कि प्राइवेट स्कूल में महीने के बाद पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं उनको क्या पढ़ाते क्या हो, आपने कितना पढ़ाया, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। पर गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ना कि वहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। सो दिस इज़ बिग इशू। जब तक ना ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वहाँ के टीचर्स को पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पेरेंट्स के भी तरफ से भी, तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये कमज़ोर रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ एजुकेशन सिस्टम आप कहते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में कम से कम मतलब हर वक्त डाउनफॉल ही होता है, उसकी क्या वजूहत है? देखिए मैं इस पे बात करूंगा, ये सीधी बात है और ये वो आप सबको पता होगा। देखिए गवर्नमेंट स्कूल, अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे ना, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की, एक टीचर की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम मैं बोलूंगा पुराने टाइम में भी वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम उसने MSc या कोई डिग्री की होनी चाहिए। आप सर्वे कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मैक्सिमम टीचर्स हैं उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। इवन कि कुछ हेडमास्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास आउट भी नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा मेन इशू मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बताऊंगा, हमारे कश्मीर का हाल ऐसा है कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, बड़े ऑफिसर्स जो हायर डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, उन्होंने 12th ग्रेजुएशन नहीं की होगी और ये करप्शन पिछले टाइम में हुआ है। देखिए अब यहाँ पे ये मसला है कि जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स है, कम से कम उनमें जो टीचर्स होने चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। मैंने कम से कम 3-4 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में दिए एज अ टीचर। तो मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स में हम टीचर्स को जो है कितना फोकस करवाते हैं, कितना फोर्स कराते हैं कि बच्चों को पढ़ाए और कितना टाइम हम बच्चों को दे रहे हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, फर्स्टली वहाँ पे टीचर जो है वो वेल क्वालिफाइड है ही नहीं। अगर वेल क्वालिफाइड कोई है तो वो एक बंदा कैसे सिस्टम को चेंज कर सकता है? जैसे कि हमें पता है एजुकेशन पे हमारे यहाँ पे भाइयों ने बोला और वॉलूर के बारे में बात चल रही है। वॉलूर में एक्चुअली कहा जाता है ना कि एक फिजिकल माइंड और एक पीसफुल माइंड वहाँ रह सकता है जहाँ पे नेचर भी अच्छा हो और जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, बाकी चीज़ें ना हो। हम देख रहे हैं वॉलूर पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस थे, हुए नहीं। और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ट्राई भी किया, मे बी नहीं भी किया, वी कांट से दैट अ लॉट यू नो। और चाहिए कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें वॉलूर के बारे में। वॉलूर एक ऐसा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स है यहाँ पे, और जब इसी के बारे में कुछ होगा नहीं, जब इसी को हमने ज़्यादा फोकस देखा है डल लेक पे होते हुए जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वॉलूर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो मे बी इस पे ज़्यादा कम फोकस दिया जाता है। बट ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बनता है एक प्रॉपर फंक्शन ले, वो इस बारे में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को असाइन के लिए, वैसे किया हुआ है शायद वेटलैंड्स डिपार्टमेंट को, बट आई डोंट थिंक उतना एक्शन हो रहा है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आई गेस एवरीवन हु विल कम हियर, ये आई लव वॉलूर लगाने से थोड़ी सब ठीक हो जाएगा। वी हैव टू मेक दैट क्लियर यू नो। वॉलूर के जो अंदर वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, वॉलूर में सारा डस्ट जा रहा है, आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब उसी में अपना सीवेज डाल रहे हैं। दैट्स नाउ हाउ थिंग्स हैपन। हाँ, वॉलूर एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स बन सकता है। वाटर प्रोजेक्ट्स हो, लोगों को पानी देना हो, लोग सबसे बड़ा जो टूरिस्ट सेक्टर है हमारा यहाँ पे वो इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन वैसा यहाँ पे देखा, एक पार्क यहाँ पे है, दूसरा सनसेट पॉइंट है, उसके बाद सीधे बांडीपोरा चले जाइए। ये थोड़ी एक लोकल व्यू पॉइंट है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिसोर्स है एशिया का, एंड आई गेस इस पे वर्क होगा। तुझसे जुदा होना मेरे हक में नहीं, तुझसे जुदा होना मेरे हक में नहीं, ये फैसला मेरे हद में नहीं। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।